Welcome to Asray Connect, the Tariq Ibrahim story. I'm Dr. Shefali Raj, and it's a privilege to introduce our esteemed guest, Mr. Tariq Ibrahim and Mrs. Vasya. Asray Connect celebrates the lives of elders through meaningful connections and vibrant activities. We're honored to welcome Mr. Tariq Ibrahim, former Intact Kanpur chapter head and a passionate preserver of heritage, for an inspiring talk show. Believe me, viewers, this house is something that I can spend hours and hours every day appreciating the the collection that is there, and something that I would very proudly say somebody I look up to in my life, Tariq ji and Vasya ji. So I think, of course, the collection that they have is something very amazing. But more than that, they are people with golden hearts, beautiful people. So today, the journey is going to be a celebration, a collection that he's made over years, and it's going to be a treat for all of you to see it. So, Tariq ji, Vasya ji, welcome to the show. Hey. So, tell us how this interest aroused actually. Actually, it was from my childhood because I've been seeing all these things from my father and various other relatives. And in Vasya's family, it was also there. Hmm. Great grandfather, grandfather, father, they also had these things, vintage things and cars and everything. So, So, was that the reason why you married her? No, family friends in generation. So, the interest matched. we were our grandfathers of his, friends. Friends. And so it was in the family, and then we came to know it and we got married. That is how. So, Vasya, when did Tareki take you on a ride? Yes, actually, it took him 7 years to restore it. So, tell us a story. It is from your lineage or from here? It is from my lineage, but Huh. it was, kind of just left out because it was in a very bad shape. And you know how it is in the families Oh. when things start like this, and nobody wants to pick up something which is like, rustic and absolutely dumped. Yeah. So, because it was his passion, he said, I want to revive this. And everybody said, fine, we don't need this crap. He said, take. You never know how it was. My God, calling this a scrap? Yes. No, you know what? When I got it, I'll show you the photograph. It was buried under the earth, Debris. and all the household trash was. This was a Dumped on it. dump. There was no even a way. And then they were distributing property. They were distributing property Huh. in his in a family. And then when came to this car, they said anybody who's interested can take it because nobody's going to change the car. I said, how sweet Ah. are they? So, was this something that you actually wanted to own? I didn't want to. Originally, I didn't. But Huh. when I came to know about this value and what it is, Yeah. then I got it restored. And he took a lot of pains. 7 years. And I got a person from England, Rose mechanic from Rolls Royce. 7 years he stayed. He used to come and restore these things because no parts were available. He had to go back again. So 2 months or 1 month he used to work here in summers, then then 1 month in winters. And he wanted everything originally. This Go to London, go to the archive, take out the things, each and everything has to be original. Took a lot of time and pain, but passion. So, were you equally passionate about it and you supported him all this while? Actually, we thought, he's just spending money for no reason. My mother-in-law was very annoyed because his plan was to restore it. And it was 100 years old in 1914. Okay. So we had planned that we will be going to London to attend the, centenary celebration. And he got it restored because of that. Because on this car first was made in 1907. Okay. So they were celebrating in London Rolls Royce 100 years. Okay. So I was planning to drive this car from India. So I had taken all the and to attend that function. And
whole thing was planned. All in Europe, everybody was everything. Well, they can Meet you over here. Yes. Meet you en route. Sort the route. Everybody was offering me that your car will be parked here. It will be very safe, and you will stay with us. Everything was planned. But then Yeah. finally, because we had to go via Pakistan, that was a problem. We didn't get permission. And then government of India when we got permission from Pakistan that we just transit in the government of India didn't allow. They said what is the surety? You will bring the car back. Okay. Now they wanted some security and that was too much and Okay. and that we couldn't fulfill those promises. So we didn't get time. So are they open? No, but they have celebrated the separate. Yeah, it can't pile up parking. No, now so. So it was sometimes you can see the photographs. It was beautiful. The car was parked there. He had a lunch for Mr. Jonathan, who was actually the person who restored it. We played all old numbers of 1950s, all the English number. And everybody was standing. It had just started there, but they take the photograph, and we were giving everybody, all the guests. And also we had told them that the Eid is this color. So everybody came in black and green. Lovely. They'd love to see those photographs. There's one just right in front. Uh-huh. So how many such prized possessions do you have? Three I can see in your porch. No, this is actually these two are the main things. Okay. Other we don't consider anything. Because Even close to this. because naturally, if you see any other vintage car or any other Rolls Royce, for them maybe it's very good, very very prized possession. But because if you own these things, then you don't. So if there's an auction of this, what would be the price of this today Actually, there are existing only two of them. in India? No, in the world. In the world. So this is one, and the other one is with an Australian person. Huh. 2012. 2012, he probably wanted to auction it and he didn't want to keep it. Huh. So he auctioned it in probably Bonhams. There's a car auction house in America. Huh. And in 1912, it was auctioned for about 42 crores or something. So this And- costs 42 crores today as we talk. Maybe more. No, I know. I don't think anybody will pay here. But anyway, he was paid the other one. So that was purchased by some museum. It's on Google. If you can Sure. see it, you will feel the details and see the details, everything on that. Can we have a look inside? Yes, please. Yes, I see. This side you can see. I love these. See. And the other thing is, and come this side. And in the Shefali, this is the telephone one way. Can only hear it. Okay. So there, Hmm. and the driver hears the instruction. And because the driver is supposed to be of inferior, class, so he is not supposed to sit on brocades. He will sit on leather. And there's brocade behind. Not- I'd like to sit on that. Oh, this is beautiful. Just look at this. This is pure luxury. Oh, this is interesting. Oh God, You have to start the car to all this. Have this light. all this gets lit even today. We can take it on a ride. No, you can't. It's not allowed. None. You need an RTO permission for this, I guess. yes. Yes. Wonderful. And this must be some. Just see this. What's written here, sir? This is a person, the company who made the body of this car. Okay.
So can you just focus on this? I think it's Barker. Yes, it's Barker's. Rolls-Royce only used to make the engine and the chassis, Okay. and you had to take it out Okay. and then get the body made as per your requirement. So All those people, they didn't want to have the same thing. Those days, all the dukes and all. Yeah. So they wanted to have their own design. Some wanted for hunting, some wanted for driving, some. right. This So- was actually a parda car, Okay. which is, the ladies were covered. And So I'm sure they didn't use the word parda. They would be using some other wheel or something. Like- Sure. Can I close it? Yeah. I'm so afraid of. It is bad. Like, नहीं ठीक तो ना कस के इसका. हाँ वैसे ही When did he last take you on a drive, Vasya ji? Keep going. Okay, once in a while, just in the garage. We have to keep it functioning. and the rims are wooden. Okay. But This is good. better for this. We need a lot of time to come and see the videos and things, how he made the rings and everything, how the tires are made, they're made here, that is in Kanpur. Seriously? Because people were amazed. It was 100-year-old technique which he used. And then we sent the Rolls Royce people and they were shocked. Rim. Huh. She's talking about that rim, I'm talking about the and they are different. This has what 14 spokes. This is what 10 or 12. The And- front one are different, and they are different. So what must be the height of this? This is, I think, 19 inches or something. They're known as 19-inch rims. And they don't have numbers? There's no RQ number? They have a number. There is? I have a number, Okay. and It looks amazing from behind. Mati. That's the cylinder? no, this is not this one. This is the test, because it was 1 liter a kilometer. Okay. So you had to have about 100 liters of tank, Oh, petrol tank. seriously. Beautiful. Beautiful. There's a beautiful story behind this, and I think we should hear it from the horse's mouth. बताइए. अब इसकी बहुत लंबी स्टोरी हाँ, बस अब आप शॉर्ट में बताइए. नॉट में ये हाँ. नहीं, वो जो है, ये जो ट्रेन है, ये इंग्लैंड में इंग्लैंड में ये था कि जो भी ओरिजिनल ट्रेन बनती थी, हाँ. जो भी इंजन बनते थे, तो उसका नाम रखा जाता था. ठीक है. तो इसका नाम है GNR अटलांटिक. ओके. तो इसमें ये था कि उसका एक कंपनी थी बैसेट एंड लोक. इट वाज लाइक रोल्स रॉयस. ओके. तो मॉडल ट्रेन्स की दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द बेस्ट कंपनी, दैट इज बैसेट एंड लोक. उनकी स्टोरी है, जी. बुक है. जी. तो वो लोग इसका स्केल डाउन मॉडल बनाते थे, ओके. और वो उसका ये एक मॉडल है. तो इसको इन्होंने राजा साहब पटियाला जो थे यहाँ पे, महाराज पटियाला, उनको पसंद आया ये कि हमें GNR अटलांटिक का चाहिए. तो उस ज़माने में भाई महाराजा का तो सब पैसे वैसे की तो प्रॉब्लम होती ही नहीं थी. तो जो ट्रेन का गेज होता है दोनों पटरियों के बीच का, जी. उसको मेजर करके कहा जाता है. जैसे मीटर गेज पहले होती थी, यहाँ छोटी लाइन, ये बड़ी लाइन. तो ये 9.5 इंच गेज है. दिस इज 9.5 इंच. ओके. तो इसको इन्होंने स्केल करके, जो बड़ा इंजन था उसको स्केल करके 9.5 इंच गेज का ये बनाया. और ये बनाया इसलिए उन्होंने कहा हमारे बच्चे इसको पढ़ते हैं, लाहौर में पढ़ते थे वो पटियाला वाले. अच्छा. तो उन्होंने कहा कि कॉलेज में हम इसको चारों तरफ से हाँ. लगाएंगे, ओके. तो बच्चे उस पर राइड करा करेंगे जब भी ब्रेक होगा. जी. तो उन्होंने, जो कंपनी थी बैसेट एंड लोक, उसने शायद 3 या 4 बनाए. एक महाराज जोधपुर के लिए, हाँ. एक पटियाला के लिए, एक लॉर्ड डेटिंगन थे इंग्लैंड के, उनके लिए बनाए, और 2-3 और बनाए. तो ये पटियाला आ गए. हाँ. पटियाला आ गए, दैट इज इन 1910 और 1915 की बात कर रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. तो वहाँ आ गए, वहाँ बच्चे अपने चलते थे इस पे.
तो इसके पीछे डिब्बे होते थे, अच्छा उसमें बैठने का मतलब ये इसकी कैपेसिटी है कि जैसे हमारे जैसे आदमी हैं तो इसमें 35 लोग बैठ सकते हैं। वी आर एक्चुअली ये रनिंग कंडीशन छोटे हैं नहीं बड़े 1 person can sit. नहीं Okay. चार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। 4 लोग एक डिब्बे में बैठते हैं। ओके एंड ये इंजन पुल कर ये पुल करता है, इसमें मैं बैठ चुका हूँ। ये इंग्लैंड में जो रिवाइव करा है उसने, जी तो वो उनके पास भी ये सब है। तो दे होल्ड एनुअल फंक्शन, उसमें आप आइए, टिकट लीजिए, उसी कपड़े में पहनिए वो पीरियड के, देन यू सिट। तो ये एक हेनरी ग्रीनर थे, जी उन्होंने 1910 में इसकी ड्राइंग करी, तो इसको पटियाला ने बनवाया, 3-4 लोगों ने बनवाया। तो जब यहाँ आ गए तो बच्चे अपने सब फिर बच्चों ने पास आउट कर लिया, तो इन्होंने पटियाला पैलेस में बुला दिया है। जब वहाँ से ये आ गए यहाँ पे पटियाला पैलेस में, तो उन्होंने फिर ये किया कि अपने पैलेस में जब डिनर करते थे वो, तो उसको डिब्बे में सीटें हटवा दी हाँ। और उसमें बड़ी-बड़ी अंगीठियाँ रखवा दी। उसपे उनका खाना रखा जाता था और वो एक ट्रेन इधर से जाती थी सेमी सर्कल, एक ट्रेन इधर से, और इसमें उनका खाना सर्व गेस्ट को होता। दैट वाज़ अ न्यू थिंग। तो वहाँ हो गया, जब वहाँ पे वो पीरियड ख़त्म हो गया 50s में, तो ज़रा प्रॉब्लम हो गई 50-60s में। 50s में फिर उन्होंने कहा कि भाई हम इसको सेल करेंगे, तो इनके बादशाह के ग्रैंडफ़ादर ने इसको परचेज़ कर लिया। कितने की खरीदी होगी तब अब ये तो हमें नहीं आइडिया है। उसमें उसमें वो अलग वो है, नहीं वो अलग है, वो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे इनका जो घर था, ये वाला जहाँ खड़ी है, दिस यूज्ड टू बी 5 एकर्स ओके फ्रॉम हियर टू गैस्ट्रो लिवर जो है, वो सब एक, तो ये ट्रैक चारों तरफ थे। अच्छा तो उसमें ये रन करती रन थी करती थी। हाउ स्वीट तो वो खैर वो दैट वाज़, ये इसकी हिस्ट्री है। फिर ये जब ली गई थी ओरिजिनली, तो इसकी कैटलॉग बनाई उन लोगों ने, बिकॉज़ इट वाज़ अ रेयर थिंग। तो अब उसमें उसके दाम वाज़ 450 pounds in 1910, which is like, and this car was about 1300। तो दोनों इंजन अगर मिला लिए तो रोल्स रॉयस के बराबर। सो दे आर वन ऑफ द एज एक्सपेंसिव एज अ रोल्स रॉयस। अमेजिंग ये इनकी हिस्ट्री। तो फिर हम लाए इसको, जब यहाँ पे इनको हुआ तो फिर ये स्क्रैप था, तो दिस वाज सोल्ड, ही बॉट एवरीथिंग, ही वाज दे सोल्ड इट टू अ स्क्रैप डीलर। ओ माय गॉड हाँ तो हमने वो ले आए। अब लाने के बाद कैसे करें, देन आई वेंट टू माय ब्रदर इन लॉ वाज इन द रेलवेज देन, सो आई आस्क्ड हिम, भाई कहाँ रिस्टोर होगा, ये स्टीम इंजन है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि वो गोरखपुर इज द प्लेस हाँ। विच हैज़ गॉट वर्कशॉप। हम गए वहाँ, वहाँ जाके फिर हमने एक फोरमैन, रिटायर्ड फोरमैन को लिया, 2-3 आदमियों को लिया, उनको लेके अपने घर आए यहाँ। यहाँ यहाँ पे आके उसके बाद हमने उसको, उन्होंने कहा हमें एक छोटी लेथ चाहिए, ये चाहिए। हाँ, सब अरेंज करी तो उन्होंने सब अरेंज करके और फिर हमने इस पे 8-9 महीने या 1 साल लगा, पूरा रिवाइव करा। उन्होंने खोल के और उसको स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट तो हमने कर दिया, चल गया, हाँ, बट आई डोंट हैव ट्रैक्स, मतलब कहाँ जगह है यहाँ चलाएं। जी। सो दे आर ऑल स्टार्ट इंजन्स एंड एवरीथिंग। इसकी जो डिटेल लाना थी वो हम लंदन म्यूजियम गए, अच्छा वहाँ पता चला कि लंदन म्यूजियम में, जो ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, वहाँ पे इसके सारी डिटेल है। तो जब मैं पहली बार गया तो क्यूरेटर ने कहा कि आप क्यों मांग रहे हैं इसकी डिटेल? तो हमने कहा कि भाई हमारे पास है, तो ही डिडंट बिलीव मी। ही सेड ये हो ही नहीं सकता, आपको इसके है ही नहीं कहीं। तो सॉरी, आई कैनॉट, आई हैव अ फुल कॉपी बट आई कांट गिव यू बिकॉज़ दे डोंट नो कि ऐसे हर आदमी को दे दे। तो दूसरी बार फिर गए हम जब, देन यू टुक ऑल योर फोटोग्राफ्स, यार ये सब स्क्रैप में पड़ा है, टुकड़े हैं। ही वाज सब वेरी सरप्राइज्ड। देन ही सेड अब इसकी हम आपको, बिकॉज़ यू शोन मी दिस, आई विल गिव यू ओरिजिनल फोटोकॉपीज ऑफ द ओरिजिनल ड्राइंग्स। हाँ तो उसने मुझे एक बंडल बनाया और कहा कि दैट आई विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, आई विल गिव यू। तो लंदन म्यूजियम फिर वो हमें मिली, वो मैं लेके आया, फिर यहाँ वर्क उनको दिया। फिर उन लोगों ने उस ड्राइंग के, तो आई कैन मेक माई सेल्फ अ न्यू वन,
क्योंकि वो सब ओरिजिनल ड्राइंग्स, तो वो फिर हमने इसको रिवाइव किया। तो आपके सारी जो हॉलीडेज होती थी, आई एम श्योर वो कहीं और नहीं होती, इसमें ही होती है। ये आर्काइव्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ये दोनों रोल्स रॉयस हैं, इसकी हम जब गए वहाँ पे, तो इसको मैंने कई साल, अब नाउ आई नो कि अगर इसका आपको आप कहेंगे कि भाई इसका ब्रेक किसने बनाया था, तो आई कैन टेल यू द टाइम, आई कैन टेल यू द पर्सन जिसने बनाया, कौन से ब्रेक में किसने, कौन सी कंपनी का लगा, कितने का लगा। तो आप भी म्यूजियम एंजॉय करते हो खाने चीज के साथ साथ कि बोर हो जाते हो उसे शॉपिंग आप शॉपिंग करने चले जाते थे यू यूज्ड टू गो टू द म्यूजियम so he used to shop more. No, he used to shop more, that means, and spend more on his shopping. Many times on his own, to get all these things. My mother-in-law was actually there, so I could not actually leave her all the time at home as well. But I used to go very often. बढ़िया। तो इसकी उन्होंने जो बुक लिखी है बैसेट एंड लो की है, उसमें उन्होंने इस ट्रेन का मेंशन किया है। सर, आपसे इंस्पायर होकर मैं इंटैक्ट की मेंबर बनी। आप बताइए, हाउ डिड योर जर्नी ऑफ इंटैक्ट स्टार्ट? हमारी जर्नी ये रही कि जो चेयरमैन थे इंटैक्ट के, अभी भी हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुप्ता, जी, आई मेट हिम। है ना, ही इज़ अ नाइस पर्सन एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली टू मी, एंड हम लोगों की बहुत दोस्ती थी। जी, ही टोल्ड मी अबाउट दीज थिंग्स, ही केम, ही विजिटेड मी, जी, और उनके एक मिलने वाले थे यहाँ पे, हम लोग उनको फॉन्डली ठाकुर साहब कहते थे, लखनऊ के, ही बिलोंग टू राजस्थान, जी, और वहाँ के वो रॉयल फैमिली के थे। तो उन्होंने, वो भी आए, वो भी हमारे दोस्त थे। तो ही केम टू दिस प्लेस एंड ही सॉ दैट दीज ओल्ड थिंग्स व्हिच आई हैव, तो उन्होंने कहा कि आर यू इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, मैंने कहा सब जमा करके रिस्टोर करते हैं। उन्होंने कहा हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी सब विंटेज रिस्टोर कर रहा है चीज़ें, और ट्रेडिशन और हेरिटेज की चीज़ें। तो हम लोग, देन आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट एंड वेंट टू दिल्ली, सॉ द थिंग्स, saw the work which they are doing, so I wanted to be part of it, and then I became the सो कितने साल आप इंटैक्ट के हेड रहे हैं यहाँ पे? 13 years. 13 years. So tell us the the most should I say adventurous or the most impactful thing that you've done in your leadership? The thing which I think was a major thing which we achieved during my time was getting this Fulbao building saved, because उसमें दो तीन चीजें थी। जी, One was के बिल्डिंग गिर रही थी, क्रैक हो गए थे, तो वाटर यूज टू कम, और उससे सब जो अंदर चीज़ें थी वो ख़राब हो रही थी। तो वो थोड़ी सी हमने, हमारे पीरियड में हम लोगों ने कोशिश करके उसको रिवाइव कराया और लीकेज बंद करा दिया, इतना तो हुआ। और दूसरी चीज़ जो वहाँ हुआ कि उसके आगे वो लोग 8 स्टोरेज एक बिल्डिंग बना रहे थे, कार पार्क, oh my god, फूलबाग की बिल्डिंग एंड जो माल रोड है उसके बीच में। अब 8 मंजिल वहाँ बन जाती है तो पूरा व्यू खत्म हो जाता है, कुछ दिखता ही नहीं। तो दे सेड के ये उन लोगों ने पास कर लिया, एंड दे सैंक्शन अबाउट 8 और 9 करोड़ फॉर दैट प्रोजेक्ट इनिशियल। तो उसमें 3-4 करोड़ दे पे टू आईआईटी, और उस पे डिगिंग शुरू कर दी विदाउट लेटिंग एनीबॉडी नो। जब डिगिंग करी देन पीपल केम टू नो, तो हम लोग को भी पता चला कि भाई क्या है, तो मालूम, इंक्वायरी करी, तो उसमें केडीए वाज इन्वॉल्वड इन इट, एंड एल कौन है यहाँ पे, वो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड नगर निगम, दे वर इन्वॉल्वड। आईआईटी, इनसे एमओयू सब हो चुका था, वो लोग डिज़ाइन कर रहे थे। तो हमें जब पता चला तो फिर आई सेड कि मिले हम जाके उन लोगों से, तो दे रिफ्यूज्ड एंड दे सेड हु आर यू, वी डोंट रिकॉग्नाइज यू, और फूलबाग इज नॉट अ आर्क, वो एएसआई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये आपका, वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस ओल्ड बिल्डिंग। तो हमने कहा कि अब आप इसको ना, अगर रजिस्टर्ड नहीं है देन डजंट मीन कि ये बिल्डिंग पुरानी नहीं है, इसके रिकॉर्ड्स हैं। आई शोड देम द रिकॉर्ड्स, बट दे डिडंट बिलीव, एंड बिकॉज मनी वाज इन्वॉल्वड इन दैट, तो आई हैड टू गो टू इलाहाबाद, एंड गो टू इलाहाबाद, फाइल अ पीआईएल, गॉट द स्टे ऑर्डर, स्टिल दे डिडंट बिलीव, और उसके बाद डिगिंग शुरू कर दी। देन आई फाइल्ड अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देयर,
वो फिर जब हुआ देन दे There are रियलाइज two. कि ये तो गड़बड़ हो गया है मामला. दैट जज वाज वेरी फेवरेबल, दैट बेंच. उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होगा यू विल हैव टू पे ऑल द डैमेजेस, एंड उसके बाद जो उसके जो हम इस पे चार्जेस लगाएंगे आपके ऊपर, यू विल ऑल हैव टू गो टू जेल. तो अब वो एक आईएएस के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी. तो वो फिर उसकी वजह से देन दिस स्टॉप्ड एंड दे क्लोज्ड एवरीथिंग देयर. और उसके बाद उसके पीछे एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने मल्टी स्टोरी बनाया. तो वो एक इट टुक मी अबाउट 3 इयर्स टू गेट ऑल दीस थिंग्स डन. And you stood all along. हमने कहा कि हम I'll fight them, and they threatened me with all the action which they will take and all that. No, But- wouldn't have been easy. हाँ, तो वो तो उसमें थोड़ा-सा इट वाज़ बिकॉज़ हमारा ये था कि हमारे फैमिली में भी सब ये लोग थे, सब तो So where do you get the strength from? So your dad was an IAS officer. यस. हाँ? My उस टाइम के आए time guy, he retired in 74 as कौन commissioner से कैडर के थे? UP. यूपी कैडर के. He was ADM special and ADM City Kanpur also Oh, which in year? was- 50s. Okay. So ये सब था. उसके बाद उनके बैच के उनके जूनियर्स जितने थे वो बहुत काफ़ी साल तक रहे. So they were also known to me. And then my younger brother was Intelligence Bureau Chief of India, Oh, IB. He was the biggest IPS officer. you had a strong backing. So I had that backing, and I was actually born in that family with officers. So I was not afraid of these officers, you know. So ये सब था. दूसरा ये था कि I knew that I'm on the right track and law is with me. Absolutely. But they were not bothered about law. यहाँ पे तो वो एक हमारे फेवर में कुछ चीजें थी. और मुझे याद है आपने एक बारी निबिया खेड़ा की कुछ एक्सकवेशन की भी बात करी थी. Would you like to tell us about that? हाँ, निविया खेड़ा is a place about 50 kilometers from here. उधर फतेहपुर के आसपास आज जाइए उधर थोड़ा सा, तो वहाँ पे एक हिल है, छोटा सा हिल टॉप है, अबाउट 100 फीट और 150 फीट. तो वहाँ पे ये बबूल के पेड़ वगैरह वहाँ पे हैं. तो दैट यूज टू बी प्लेस, वहाँ पार्टीज वगैरह काफ़ी हैं. तो आई यूज टू गो देयर समटाइम्स. तो वहाँ पे गांव में एक बार हम गए तो दे सेड कि साहब ये हमें ये मिला है, कॉइन्स मिले हैं. तो कहीं पे कभी कोई सिल्वर के, कॉपर के. तो उनसे पूछा ये कहाँ मिलते हैं तुम्हें? तो उन्होंने बताया कि साहब इस पहाड़ के ऊपर छोटा सा है. तो वो थोड़ा सा रास्ता तो है नहीं, बट आई क्लाइंब दैट टाइम और उसको देखा. तो वहाँ पे बिल्कुल एक बैरन लैंड है और वो सब कुछ खेती वेती होती नहीं है, मगर वहीं कई लोगों को कभी कभी मिल जाते हैं. तो जब हम गए, आई वेंट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years back. जी. I went and few of my friends went. तो वहाँ पे हमने देखा कि पॉटरी के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं, जैसे घड़े हैं, मूर्तियाँ बहुत सारी पड़ी पड़ी टूटी हुई और जस्ट लाइंग स्कैटर्ड देयर. तो हमने कहा भाई ये तो खुदाई भी नहीं, ये तो ऊपर ही पड़ी है. तो उन्होंने कहा "हाँ, यहाँ लोग कभी कभी आते हैं, लोग जो ले आते हैं, और उठा के ले जाते. वहाँ को है ही नहीं. तो उसमें हमने कहा कि भाई ये सब कैसे बताई. देन आई आस्क्ड माय पर्सन कि भाई हम लोग का कुछ थैला वैला है. तो थैला था, तो उसमें हम भी 4-5 जो पीसेस. पीसेस से ले आए. जी. गॉट देम टेस्टेड हियर. तो उन्होंने बताया तो कई 100 साल पुरानी है. उसके बाद व्हेन आई वेंट सेकंड टाइम, बरसात थोड़ी हुई, उसके बाद गए तो आई फाउंड कि वहाँ पे मट्टी थोड़ी सी सिंक कर गई है और वहाँ पे नीचे आई कुड सी दीवार, अच्छा, एक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर. तो वो दीवार वाज वेरी थिक, अबाउट 1.5 feet ब्रॉड. ऊपर से दिख रही थी वो 3-4 फुट नीचे. तो वो सब दिखी तो आई रियलाइज कि भाई यहाँ पे अंदर इसके स्ट्रक्चर है और जब ये सिक्के निकल रहे हैं इट हैज़ टू बी सम प्लेस, हवेली हो या किसी का किला हो, एक यहाँ पे बेरिड सिटी एक टाइप की चीज़ है. आई बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इट एक्सकवेटेड. बट वो इतना रिमोट एरिया है कि वहाँ पे लोगों का गांव है, तो वहाँ पे सेफ नहीं था, एक चीज़. दूसरा ये है कि वो थोड़ा-सा यहाँ पे हमें बैकिंग नहीं मिली लोगों की, ऑफ़िसर्स की, क्योंकि कोई पुलिस वहाँ इंतज़ाम करे, क्योंकि अगर आप खोदें, अगर कुछ भी मिलता है तो वो लोग लूट लेते हैं जितने लोग हैं.
वो अपनी अगर कोई टीम एक बने और कोई जाए वहाँ कैंप करे और उसके बाद आप उसको तो निकालें। गवर्नमेंट ने नहीं वहाँ पे एक्सकवेशन किया नहीं, nobody is टिल डेट? still date nobody is bothered about that। और अब हम 2-3 साल से नहीं गए हैं, मगर अब तो और मट्टी केबिन कर गई होगी। अब तो you can see the boundary and everything there। तो still I want to I want to do that, but नहीं हो पा रहा। करते हैं अब यहाँ पे अब वो ये है कि भाई हम तो चल नहीं पाएंगे, बट आई नो द थिंग, इतनी बार हम गए हैं। सो इंटैक्ट दिल्ली की हेल्प लेकर के हाँ, इनफैक्ट वो जी, मगर यहाँ पे तो पहले अपना ग्राउंड पर ही दे आर अग्रीड। जनरल जो चेयरमैन है, ही इज अग्रीड, ही सेज आप करिए, आई विल बी विथ यू। बट यहाँ पे हमारे पास टीम नहीं है जो कि इसको करे। ये गेट। आपका एक और रूम है जहाँ हम आपको ऑब्वियसली अब ये इस चेयर से नहीं मूव कराएंगे बिकॉज यू डन इनफ एक्सरसाइज टुडे, बट वहाँ की कोई ऐसी प्राइज्ड पोजेशन है दैट यू लाइक टू टेल अस अबाउट? सो आई रिमेम्बर आपने मुझे पूरा एक टूर कराया था। आई थिंक देयर वर ग्रामोफोन्स एंड सारी चीजें। ये है, वो है। क्या है उसमें बताइए? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम उसको कितनी चीज़ें उसमें बहुत जनरल चीज़ें जो चीज़ हमारे पास थी, जी। उनको रिवाइव कर लिया और कुछ हमने कलेक्ट किए हैं। कभी म्यूजियम बनाने को मन नहीं किया? नहीं, म्यूज़ियम हमें ये पर्सनल शौक था अपना, तो हमें अपने शौक रहता है, हमें जब होता है तो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। फैमिली वाले आ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं हम लोग, अपना ये खुद ही एन्जॉय करते हैं वहाँ पे क्या। आई थिंक ये कानपुर का एक क्या बोलूँगी मैं, आइकॉनिक प्लेस बन सकता है। आई थिंक अगर एक म्यूजियम अगर सोचे बनाने का। आगे बताइए फिर प्राइवेसी क्या रहेगी अगर सुबह-शाम लोग आके नहीं, भाई ये तो हाँ, घर में अलग करना अलग करना पड़ेगा, बिल्कुल अलग। तो अब अलग कहाँ हो पाएगा आप बताइए? तो ये तो अलग ऐसा हो कि भाई म्यूज़ियम हो तो वो तो फिर पब्लिक प्लेस हो गई। आप किसको मना करेंगे, रोज़ स्कूल से आएँगे, ये आएँ, इतना कहाँ होगा बताइए? एक पट नहीं, बहुत ज़्यादा है बच्चा। जी। अच्छा, आप एनी मैसेज और पीस ऑफ एडवाइस यूड लाइक टू गिव टू द यंगस्टर्स टुडे? अगर कोई इंटरेस्ट रखता हो कलेक्टिबल्स में, कोई एंटीक कलेक्शन करता है, इज देयर समथिंग यूड लाइक टू? हाँ, तो आई विल एडवाइस देम कि भाई पहले तो जो भी अगर किसी को इंटरेस्ट है, हाँ, अगर कोई स्पेशल चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ही इज़ मोस्ट विलिंग, ही कैन कम हियर, ही इज़ मोस्ट वेलकम। हमारे पास आए, आई कैन गाइड हिम कि भाई ये चीज़ ये है, आई हैव कैटलॉग्स, आई हैव प्राइस लिस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स। जो भी उनको हेल्प होना है, आई कैन गिव देम दैट। और उसके बाद जो हम उनको बता सकते हैं, जो उनके समझ में नहीं आता है, वो उनको बता दें। आई कैन गाइड देम बिकॉज़ आई वांट कि भाई ये सब चीज़ें इतनी रेयर इंडिया के पास हैं। हम लोगों के पास यहाँ पे अब भी घरों में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास तो कुछ चीज़ें हैं और लोगों के पास बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें जो हैं वो सब अब मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज़ ये सब खत्म हो जाएँगी। बिल्कुल। बिकॉज़ दिस रिक्वायर्स मेंटेनेंस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज़ यू शुड नो कि भाई इसको ओरिजिनली कैसे यू हैव टू गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ। योरसेल्फ, कोई इस पे आप नहीं कर सकते। छोड़ नहीं सकते। नहीं, और उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कब बनी, कैसे बनी, ये सब चीज़ें भी मालूम होना चाहिए कि हू वाज़ द वन हू मेड इट, व्हाई वाज़ इट मेड, उसका क्या चीज़ें हैं। ये सब उसको कैसे करें, और रिवाइव करने के लिए लोग अब नहीं हैं, तो इसलिए जहाँ कहाँ पे मिलते हैं, वो सब आप करें। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो कि तो बहुत। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक शाही शौक है? यू नीड टू हैव लॉट ऑफ मनी टू डू दिस। हाँ, बट वंस यू गेट एवरीथिंग डन देन इट्स ओनली मेंटेनेंस। अगर आपने उसको चीज़ें अपनी रिवाइव कर ली वंस, तो देन यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट बिकॉज़ दे आर सो वेल मेड। क्योंकि उस ज़माने में कारीगरी इतनी अच्छी होती थी कि एक बार आपने ठीक कर दी तो फिर वो चलेगी। चलेगी। अब आप समझिए जैसे 10 साल हो गए, रोल्स-रॉयस 15 साल हो गए, नो रिवाइव करे, तो उसको आप बैटरी है, टायर देखते रहिए, साफ करते रहिए, दैट्स इट। डोंट स्पेंड ऑन दैट। और कुछ चीज़ें अब जैसे ग्रामोफ़ोन्स का है हमारे पास, कुछ है ग्रामोफ़ोन, जी, जो बहुत पहले फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड बना, जी। तो वो टिन के ऊपर एक फ़ॉइल के ऊपर बना। अच्छा। दैट वाज़ मेबी 250 इयर्स ओल्ड और 200
तो उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम्म, तो टिल फॉइल खत्म हो गया। जी, देन दे मेड इट ऑन वैक्स, ओके। वैक्स के ग्रामोफोन बने, तो वो उसके बाद वो आपके डिस्क वाले बने जो हम लोग बजाते रहे। हाँ, आई थिंक मुझे मेरी चाइल्डहुड मेमोरी तो वही है, सोनोडाइन का वुडन एंड उसके ऊपर हाँ, वो चलते रिकॉर्ड। जी, वो शेलेक रिकॉर्ड्स कहलाते थे। अ, और उसके बाद फिर वो एलपी आए, हाँ, दूसरे जो प्लास्टिक वाले जो होते थे, तो ये सब आए। तो जो फर्स्ट बना है, जो टिन की मशीन पे बना, वो तो अब कोई वर्ल्ड में शायद ही नहीं है कहीं भी। बट उसके बाद जो फर्स्ट अभी अवेलेबल है, हाँ, वो वैक्स के रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। you have them. आई हैव द रिकॉर्ड, आई हैव द मशीन आल्सो, Love, वी कैन प्ले ऑन दैट। love. और कभी सुनते हैं, हाँ, तो आप जब आ जाइए उसको आप खुद सुनते हैं कभी हाँ, कभी? सुनते हैं, मगर वो बड़े उसमें परेशानी है कि ज़रा-सा कस के दबा दिए टूट जाते हैं। तो आई हैड अबाउट 7 और 8 ऑफ देम, और उसमें 3-4 टूट गए। अब वो वहाँ पे हमारे पास अभी कुछ रखे हैं, आना है अभी इंग्लैंड से। तो वो कोई हम आए, सँभाल के लाए। आई हैव अबाउट 10 ऑफ देम देयर। तो अभी हमारे पास है कुछ रिकॉर्ड, मगर आवाज़ अब भी आती है वही पुरानी म्यूज़िक की आती है उसमें। आई हैव दैट। और उसके बाद फिर पेपर रिकॉर्ड बने, तो वो पियानोला में बजते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है आपके एज ग्रुप के जितने लोग हैं कानपुर में, अगर वो आपके घर कभी आ जाए, इट्स गोइंग बी ट्रीट फॉर देम, मतलब दे विल रीलिव देयर चाइल्डहुड। हाँ, वो आ जाए तो है। और उसमें एक है, सुचित्रा को आप जानती हैं? जी, जी, सुचित्रा के हस्बैंड जो हैं, जी। उनको भी शौक है उनको बहुत शौक है, और उनको बहुत शौक है, ट्रेन्स के एक्सपर्ट है वो। ट्रेन्स के। ट्रेन जो हमारे पास है ये, ओके, वो हमारे पास जब हमने लिया था ये स्क्रैप में बिल्कुल टुकड़े में थी, उसकी जी। तस्वीरें हम कभी दिखाएँगे आपको। जी, तो ही वाज़ द वन हू सेड कि ये उन्होंने इसका वो देखा, जहाँ का ये बना हुआ है, कंपनी का मोनोग्राम। जी। तो उसको देख के ही सेड यू नो व्हाट इट इज़, और हाँ। उसके बाद ही रिसर्च्ड ऑन इट एंड ही टोल्ड मी व्हाट इम्पोर्टेंस इट इज़, कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो फिर हम उस पे इंटरेस्ट लिया, फिर हमने पढ़ा। तो So he also has a good collection. अरे उनके पास तो बहुत कलेक्शन है। उसके बाद ट्रेन, उन्होंने इतना बड़ा कमरा है, उसमें उन्होंने पूरी एक टेबल बनाई, उस पे पूरा ट्रेन के ट्रैक लेट किए हैं। छोटे उनके पास बड़े नहीं हैं, सिर्फ छोटे वाले हैं। Okay, me और too. उसके बाद ये है कि आपकी ट्रेन आ रही है, ये सिग्नल गिरेगा, लोग खड़े हुए हैं, ऑल दैट थिंग इज़ देयर। Oh, I am going to request it. वो तो ये समझिए कि वो जो हम लोग उनको, उनका नाम हम लोग छुटकू कहते हैं, यार राघवेंद्रजीत सिंह। Uh, अरे उनसे ज़्यादा तो ट्रेन के एक्सपर्ट कोई नहीं है। uh, सो ही इज़ द वन हू टॉट मी कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तभी हमने इसको रिस्टोर करा। वहाँ- इसकी वजह से उधर किताब रखी है एक शायद, बैसेट एंड लो, हाँ, वो देखा है हम इनको तस्वीर, इसी ट्रेन की दिखाते हैं आपको तस्वीर। उन्होंने कैटलॉग अपनी कंपनी की बनाई है, तो हमें मालूम हुआ कि एक साहब ने इंग्लैंड में बताया कि उस वो किताब आप खरीदिए, तो वो खरीदी, तो वो उसमें है, और इसकी ड्राइंग्स भी हमारे पास हैं, वो भी आपको दिखाएँगे किसी रोज़। अब मुझे ऐसे लगता है मुझे कैमरामैन की तो उसको जाने की जल्दी होगी, बट मैं तो आपके पूरी स्टोरीज पूरा दिन सुन सकती हूँ। हाँ, तो नहीं, बैसेट एंड लो खाली, So you have a library as well? You have a good collection of books? थोड़ी बहुत है। अच्छा, ये है, देखिए ये कंपनी है जो हाँ। बनाती, जिसने बनाई है ये। Bassett Loy. हाँ, बैसेट एंड लो, Pronounce it? बैसेट एंड लो। Okay. This KE is silent. हाँ, बैसेट एंड लो, Bassett. ये कंपनी है ना। तो ये लोग 2 के मॉडल बनाते थे। शिप्स जितनी इंग्लैंड में बनती थी, वो, और जितने भी आपके रेल बनती थी। अब इसमें आपको इसकी तस्वीर दिखाएँ अपनी ट्रेन की, इसमें इसी में है। आपने मार्क करी होगी मुझे लगता है। हाँ, देखिए ये है। ये ये तो वो है जो बेचारे हमें दी है जिन्होंने ये वाली। ये मोनोग्राम है इसका। Can I request you to cover this? हाँ, इसमें देखिए, ये मार्क किया हुआ है। ये देखिए, इसी ट्रेन का हाँ, इन्होंने, description अच्छा मेंशन है। देखिए,
ये जो हमने किया है क्या है? Hmm. The largest steam locomotive was the 9.5 gauge No. two-stage model, Atlantic. Oh, we just saw it. Maharajas of Jodhpur and Patiala. This is the one, Patiala one. This is the Patiala one. So these are called garden railway. Garden railways. Because they're so big और इसमें ये तो इनके पास है जी. और इसमें प्राइस भी शायद लिखा होगा. Price, yes. 250. नहीं, 450 होगा. 250. क्या लिखा है इसमें? ये पूरा क्या पढ़ नहीं पाए. The gauge लिखा हुआ है LNWR. Useful models of which 15 were built between the wars, but it was not really powerful enough. नहीं, ये दूसरा है. ये ये इसी के नीचे लिखा हुआ है प्राइस 250. और उसके बाद नहीं, इसमें तो 450 का था. नहीं, तो फिर आपने दूसरा कुछ इसमें तो 250 लिखा हुआ है. ऊपर क्या लिखा है ये? The largest steam locomotive was 9.5 gauge two-skip model of GNR, highlighted at Atlantic, which was first introduced in 1910. 10, हाँ. It was a very practical model and good value for money. Oh, I think you're right. At about 450. 450, and you know this car was purchased for 900 pounds. हाँ. तो आप समझिए उसके आधे की तो हो गई है. तो 2 मिला के 900. 2 मिला के 900 हो गए. तो वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जितने की रोल्स रॉयस है उतने की है. So they're talking of another model. George वो the Fifth दूसरा was a useful model. उसका लिखा है. उसका लिखा है. अभी तो मैंने कहूँ मैंने तो बाहर दूसरा इसकी तस्वीर देखिए आप. जेनआर अटलांटिक की दिखाएं आपको. इसमें देखिए हमने मार्क किया है. इसमें ये है. ये क्या है? ये GNR Atlantis. इसमें कौन सी वाली 47. कौन सी 47 ये है क्या? नहीं, दो 47. Very small. ये देखिए ऐसे बैठते हैं तो 35 पीपल बैठते हैं ऐसे. Wow. इसको चलवाइए हम भी बैठेंगे. तो कुछ जगह दे दीजिए. कुछ I think government should support you. कोई नहीं This देता. initiative. एक यहाँ पे वो पेपर था, पता नहीं उसने हमारी भी उसने होंगे बैठे हुए ड्राइंग. ये देखिए ये जो है इनके पास एक ही है. ये हमें भेजते हैं, एनुअल फेट करते हैं. ये ऐसे इनविटेशन भेजते हैं. Oh, so beautiful. So these are the invites that you get for the train rides. I think कानपुर में हम लोगों को organize करनी है. अरे ये जगह पहले तो मिले करिए हो. ये तो हमारे पास डिब्बे भी हैं, बनवा देंगे उसको. हमारे पास सब रखा, खाली थोड़ा सा काम रह गया उसमें. I'll start writing to the government on your behalf. अगर अब बड़ी जगह मिल जाए और ये देखिए ऐसे बुलाते हैं और सब आपको वो जाना होता है उसी पीरियड ड्रेस में. सब उसी तरह ये पूरा राइट अप देते हैं कौन पढ़ाएगा तो सब इनवाइट करते हैं कि हमें बेचारे, क्योंकि ही इज द वन हु वांटेड. ही सेड ही हैज ऑल द ट्रेन मॉडल्स ऑफ दिस 9.5 गेज एक्सेप्ट दिस वन. Oh, तो वो कह रहे हैं कि अब प्लीज इसको दे दीजिए. दे दीजिए. हमने कहा कि आप हमें दे दीजिए. तो ये इज द वन हु गाइडेड मी कि कहाँ मिलेगा. So this guy is in London? No, Australian. Or the Australian guy? London guy. तो इन्होंने ये बेचारे London को कुछ नहीं देना है हम लोगों को. तो अब तो वापस लेना है. तो वो वहाँ से ही हमने चीज़ें ये बेचारे भेजते रहते हैं. ये हर साल बुलाते हैं. Beautiful. तो ये सब बताइए. ये है सब अब Thank you. ये सब सामान हमारे पास जो अपना अपना है उसी को जमा करके और फर्नीचर सब अपना रिवाइज. It takes lot of course, passion is that undercurrent. अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा. But lot of hard work
अब आप देखेंगे जैसे वो रिवाइव हो रहा है, हाँ. महीनों हो गए रिवाइव पे। No, you have to be insistent, persistent, no, consistent. Then only it is possible to हाँ, observe and जब हो observe. जाएगा तब एक सेटिस्फैक्शन होता है कि ना अब हमारे हिसाब से हो गया। तो अब जब तक ज़रा सा गड़बड़ होगा तब नहीं बनेगा, हम मनाएँगे। So may God keep you hale and hearty and the spirit, the never dying spirit of चलिए, थैंक यू। keeping your collectibles very safe. Thank you so much for your time. And by the way, let me tell you, तारिक जी किसी को जल्दी इनवाइट नहीं करते हैं. यू आर द मैंने फर्स्ट वन प्रॉब्ली। Am I the first one? I'm honored. I'm truly honored. He doesn't like to speak about it to public, but I think I have a special place. And हम intact members हैं. I think that's the respect I have earned in his eyes. But thank you. नहीं, आपको खुद शौक बहुत है इसलिए हमने कार्ड दिया। नहीं, मुझे शौक के साथ आप मतलब इसी शौक और आपके लिए बहुत इज्जत है. तो शायद वो इज्जत ही मुझे आपके पास लेकर आई. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच। नहीं रखता, एक छोटा सा सर्टिफिकेट है हमारी तरफ से आपके लिए. इतनी सारी सुंदर चीजों के बीच में इसकी शायद कोई जगह भी नहीं होगी, बट हमें मन था आपको देने का. नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये देखो मेरे पास 7